بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم يرد علیہ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وانما یکرہ ھذا عندنا اذا کان علی الغائط والبول۔ وقد فسر بعض اہل العلم ذلك وهذا احسن شيء روی فی هذا الباب۔ وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن شقوى وجابر والبراء۔ یہ باب سلام کا جواب دینا غیر متوضی کی حالت میں اس کی کراہیت کے بیان میں۔ صحاح میں ایک اضافہ ہے اسی حدیث میں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ استنجا فرما رہے تھے، پیشاب فرما رہے تھے، وہو یبول، فلم یرد علیہ، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو ایک اضافہ صحاح میں اسی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمانے کے بعد یا وضو فرمانے کے بعد جواب دیا ہے۔ یہ اضافہ ہے، مگر اس حدیث شریف میں جو ترمذی شریف میں ہے یہ نہیں ہے۔ پیشاب کے وقت میں آپ نے جواب نہیں دیا، عند البول آپ نے جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بالفعل استنجا کر رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی شخص سلام کر لے جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، تو استنجا کرنے والے کے لیے جواب دینا مکروہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بالفعل استنجا یعنی پیشاب تو نہیں کر رہا ہے مگر ڈھیلے سے استنجا کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں متقدمین کی کوئی رائے نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ سلام کرنا اور جواب دینا جائز ہے اس صورت میں، جبکہ وہ ڈھیلا سے استنجا کر رہا ہے، یعنی بالفعل استنجا نہیں کر رہا ہے، پیشاب نہیں کر رہا ہے، لیکن ڈھیلے سے استنجا کر رہا ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ سلام کرنا اور جواب دینا جائز ہے، مگر حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی مظہر علوم سہارنپور کی رائے اس کے خلاف تھی، یعنی سلام کرنا اور جواب دینا مکروہ ہے۔ اب رہی بات کہ یہ حدیث شریف کس سے متعلق ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق عند البول سلام کرنے سے ہے، کیونکہ وہو یبولو کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ استنجا فرما رہے تھے، پیشاب فرما رہے تھے عند البول، مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا سے واپس آنے کے وقت ہے۔ حدیث شریف میں جو وہو یبولو آیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ استنجا فرما رہے تھے، وہ ایک تعبیر ہے جو مجازی ہے، لہٰذا یہ حدیث شریف اللہ کا ذکر کرنا غیر طاہر کی صورت میں اس کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے، حالانکہ مسئلہ اس کے خلاف ہے، ذکر اللہ کے لیے طاہر ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث شریف مشیر ہے، اشارہ کرتی ہے کہ اگر ضروری نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جو ہے جواب نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک ہونا ضروری ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر
फरमाते थे। हज़रत अली से मरवी है रदी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से तशरीफ़ लाते और हमारे साथ कुरान शरीफ पढ़ते और खाते और पीते, और आपको सिवाय जिनाबत के कोई चीज़ कुरान पढ़ने से नहीं रोकती थी। इन रिवायतों को सामने रखकर ये फ़ैसला किया गया कि अज़कार की दो किस्में हैं। एक है अज़कार ख़ासा बिल वक्त, यानी जो ख़ास हैं वक्त के साथ, और एक किस्म है अज़कार गैर ख़ासा बिल वक्त। पहली की मिसाल जैसे सलाम का जवाब देना, जिसने सलाम किया उसका उसी वक्त जवाब देना ज़रूरी है, ये ख़ासा बिल वक्त है। अगर दोनों ने सलाम मान किया है, एक साथ किया है, तो अब जवाब देना किसी पर ज़रूरी नहीं, यही सलाम जवाब बन जाएगा। ये एक ज़िमनी बात थी। तो सलाम करना भी इसकी एक मिसाल बन सकती है। मसला जो अज़कार मुख्तस बिल वक्त हैं उनके लिए वज़ू न मुस्तहब है न वाजिब है। वो अज़कार जो मुख्तस बिल वक्त हैं उनके लिए वज़ू मुस्तहब है, जैसा कि हिदाया में है, मगर हिदाया में मुतलक ज़िक्र मज़कूर है, अज़कार गैर मुख्तसा की क़ैद नहीं है। दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हाल में ज़िक्र करना है। तो बाब की हदीस शरीफ इसका जवाब उलमा ने दिया है कि ये हदीस मनसूख है, मगर सही जवाब ये है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी हालत है, उमूमी हालत नहीं है। बाज़ हालत ऐसी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है, आवाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मसला जो है ये उमूमी हालत का है। खुसूसी हालत का मतलब हालत इस्तिहज़ार है। ये एक पहला जवाब दिया गया है, एक जवाब। बाब की हदीस शरीफ का दूसरा जवाब ये दिया गया है कि वो दो हदीसें जवाज़ पर दाल हैं और ये हदीस शरीफ इस्तिहबाब पर दाल है। मगर इस जवाब पर यह एतराज़ है कि इस हदीस शरीफ में ज़िक्र से मुराद वो ज़िक्र है जो ख़ास बिल वक्त है, और ऐसे ज़िक्र के लिए वज़ू न मुस्तहब है न वाजिब है। इसलिए पहला जवाब ही बेहतर है और पहला जवाब ही ज़्यादा अच्छा है। इमाम तिरमिज़ी ने व इन्नमा युक्रहु, यह युक्रहु मजहूल पढ़ा जाएगा। ये लफ्ज़ हर उस जगह मजहूल होगा जहाँ उसका फ़ाइल नहीं आएगा, यानी फ़ाइल उसका मज़कूर नहीं होगा, तो वहाँ युक्रहु पढ़ा जाएगा। और जब फ़ाइल आएगा तो मारूफ़ होगा। अक्सर इसका ख्याल अक्सर जो है इसका ख्याल नहीं किया जाता है और तलबा को इसमें परेशानी होती है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर फ़ाइल मज़कूर है और अगर मज़कूर नहीं है, तो दोनों सूरतों में अगर मज़कूर है तो फ़ाइल मारूफ़ नहीं है, यानी मजहूल होगा, उसमें युक्रहु पढ़ा जाएगा फ़ाइल अगर नहीं आएगा। और अगर फ़ाइल आएगा तो वहाँ मारूफ़ होगा, यकरहु पढ़ा जाएगा। और अक्सर व बेशतर इसका ऐसा होता है कि इसका इस्तेमाल बग़ैर फ़ाइल के आता है। तो यही हाल इसका फ़ेल माजी का भी है कि कुरिहा और करिहा, करिहा मुहम्मदुन और कुरिहा सलाम इंदल बौल, इस तरह से दोनों मिसाल बन सकती हैं फ़ेल माजी में। मारूफ़ उसकी मिसाल करिहा मुहम्मदुन, और अगर मजहूल है तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, तो जहाँ उसका फ़ाइल मज़कूर नहीं है तो कुरिहा सलाम व इंदल बौल। खुलासा ये निकला कि गैर पाकी की हालत में सलाम का जवाब देना ये कराहियत है, और इसके अंदर इतनी सारी तफसीलें हैं, मुतक़द्दिमीन से कोई इस तरह से मनक़ूल नहीं है, मुतअख़िरीन ने उसमें तफसील की है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के ज़रिए मदद कर सकते हैं।